Students, today we will start the atomic and physical properties of D block elements. But before this topic, students, just see the previous lecture in which I have discussed regarding the electronic configurations and you can say atomic number of the elements, so that that will be easy for you to understand the properties, because these properties are directly or indirectly somewhat related to the atomic number and their electronic configurations. So out of the total atomic and physical properties, today we will study two physical and atomic properties. Number one, we will study atomic radii, and the second property that we will study today is ionic radii. ये दो प्रॉपर्टी बेटा हमें आज स्टडी करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर, atomic radii. So listen students, just first we have to study what is the meaning of atomic radii. Just try to understand. Suppose this is the nucleus, this is the first shell, this is the second shell. So first shell contain 2 electrons, whereas the second shell contain 1 electrons. तो यहाँ पर बेटा ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, this is I will say outermost electron, and this point, this is said to be the center of nucleus. And one more thing, आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है, the electron will exist as a cloud. So यहाँ से जो आपका एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आएगी, जस्ट सी आउट, आपको सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के क्लाउड तक जाना है. दिस पॉइंट आर, व्हाट इज रेडियस? आई विल राइट हियर, डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus to the outermost electron cloud. This is, you can say, your atomic radii. Now in this particular topic we have to study कि जो atomic radius है ये डी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी कि जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर है विच आर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियई. नो डाउट दिस फैक्टर वी हैव डन इन द 11th क्लास, बट एक बार इनको रिवाइव करते हैं और स्टडी करते हैं कहाँ कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, बट लिसन वन थिंग, आपके सिलेबस में कंसिडर किया जाए तो नोबडी विल आस्क यू एक्सप्लेन दिस फैक्टर. आपको सिर्फ रेडियई के रिगार्डिंग रिजल्ट को स्टडी करना है. सो लेट फर्स्ट सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एटॉमिक रेडियई. और ये फैक्टर हम वो स्टडी करेंगे जो हमारे डी और एफ ब्लॉक में, क्योंकि चैप्टर हमारे डी और एफ ब्लॉक है, कंप्लीट हम स्टडी कर रहे हैं. सो मैं वो फैक्टर आपको बताऊंगा जो यहाँ पर एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी, आई विल राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियई ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक. दोनों में कंबाइंडली हम अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे बेटा सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखना, द फर्स्ट फैक्टर यू हैव टू सी main shells. All of you know main shell is directly proportional to radii. If I'll take an example, just see out, simple example लेके चलते हैं हम. Scandium atomic number 21, Therium atomic number 39. Just see out. तो Scandium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, and Therium is बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then 4p6, after that 5s2, 4d1. Now see beta, in the scandium we are having 4 main shells, whereas in the therium we are having 5 main shells. कैसे पता करा? सिंपल है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, that will be the number of main shells. So what will I say? I'll say radius of therium is greater than the radius of scandium due to more number of main shells. सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपकी मेन शेल ज़्यादा होंगी तो आपका रेडियस भी ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है. एक छोटा सा मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ, चलिए देखते हैं इसको भी. If I'll take the example of lithium 3 and sodium 11, configuration of lithium is 1s2, 2s1, where for the sodium this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now see the student, in the lithium we are having two main shells,
एंड इन द सोडियम वी आर हैविंग 3 मेन शेल्स. सो जस्ट अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो देखिए व्हाट हैपन्स. फॉर फर्स्ट लिथियम को ड्रॉ करेंगे. दिस इज द फर्स्ट शेल, इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द लिथियम. दिस इज द सेकेंड शेल, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज फॉर द लिथियम. सो लिथियम में जो आपका रेडियस होगा वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक. क्लियर. और आपको पता होगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द, यू कैन से, आउटर मोस्ट शेल. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं सोडियम का. सोडियम में इफ आई ड्रॉ द, दिस इज द न्यूक्लियस. First shell, it contain 2 electrons. Second shell, it contain 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And third shell contain 1 electron. तो सोडियम में जो आपका रेडियस है वो इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक होगा, और आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है. तो सिंपल देखिए बेटा, अगर आपकी मेन शेल ज़्यादा होंगी, ठीक है, सो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन शेल 3 है, तो आपने कहाँ तक का डिस्टेंस लिया, थर्ड शेल तक का डिस्टेंस लिया. यहाँ पे मेन शेल 2 है, तो आपने डिस्टेंस कहाँ तक का लिया, सेकंड मेन शेल तक का. तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी मेन शेल ज़्यादा होंगी, इफ मोर इज द नंबर ऑफ मेन शेल देन मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and outermost electron cloud and more will be the radii. तो अगर आपसे कोई पूछे भी मेन शेल ज़्यादा होने से रेडियस क्यों ज़्यादा होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जिस एलिमेंट में मेन शेल ज़्यादा होंगी, ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा. तो लिथियम और सोडियम में आप देखिए, सोडियम में 3 मेन शेल है, लिथियम में 2. सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सोडियम इज मोर देन रेडियस ऑफ लिथियम बिकॉज इन सोडियम देयर इज मोर मेन शेल. तो ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया था. अप्लाई अभी मैंने इसको स्कैंडियम पे और टेरियम पे किया था, कहीं पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो पहला फैक्टर हमारा क्लियर हुआ, मेन शेल्स, जस्ट सी आउट. एंड रिमेंबर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. नाउ द सेकेंड फैक्टर, मेन शेल के बाद जो पहला फैक्टर हम अप्लाई करेंगे दैट इज न्यूक्लियर चार्ज Z. ठीक है, चलिए नाउ, एंड न्यूक्लियर चार्ज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. चेक करते हैं, जस्ट सी आउट, व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज, सिंबल Z. सपोज बेटा दिस इज द न्यूक्लियस, this is the first shell having the 2 electrons, and I'll give you the example of this is the second shell containing 1 electron. This is first shell, second में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने, 1 नहीं 2, सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन है, इट इज द न्यूक्लियर चार्ज. व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? और इसकी नेचर है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सो वी कैन राइट दैट दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतने ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की साइड अट्रैक्ट होंगे, दिस वे. क्लियर नाउ? अगर ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे देन व्हाट हैपन्स? द शेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रेडियाई डिक्रीजेस. तो सिंपल सा लॉजिक है, आई विल राइट हेयर, इफ मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, देन मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम FOA भी लिख सकते हैं, ऑन इलेक्ट्रॉन्स
then what happens? The shell contracts and the radii decreases. Very clear. So this is, I have told you, inversely proportional to radii. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, just see out. पहले कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. इफ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन 6 एंड नाइट्रोजन 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p2 फॉर कार्बन. फॉर नाइट्रोजन बेटा 1s2, 2s2, 2p3. अब देखिए मैं मेन शेल आपके सेम है, बोथ कंटेन 2 मेन शेल्स. सो मेन शेल के बाद हमें यहाँ पर पर्टिकुलर, अगर मैं डी और एफ ब्लॉक की बात करूँ, हमें न्यूक्लियर चार्ज को अप्लाई करना है. ठीक है, और जनरल भी न्यूक्लियर चार्ज ही करते हैं. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. अब सबसे इंपॉर्टेंट, किस एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है? देखिए, एलिमेंट हैविंग more atomic number will have more nuclear charge. That you have to remind. Clear to all of you now? चलिए, अब तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. सो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन. फिर से देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसको न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा. देयरफॉर रेडियाई ऑफ कार्बन इज मोर देन रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब इसी चीज़ को डी ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम चैप्टर डी और एफ ब्लॉक कर रहे हैं. सो डी में बेटा देखिए, अब थोड़ा सा आपको स्टडी करना है कि न्यूक्लियर चार्ज में कहाँ पर अप्लाई करूँगा. सो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेकर D5 तक आपको न्यूक्लियर चार्ज को अप्लाई करना है. इफ़ योर कॉन्फ़िगरेशन कंटेंट D1, लास्ट में D2, D3, D4 या D5, तो हम कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. हम बात क्रोमियम तक करेंगे, मैग्नीज को बाद में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर अब अगर आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24. सो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको देखना है क्लियरली कि जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है, मैं D1 से D5 कह रहा हूँ, और फर्स्ट प्रॉपरली क्या मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट 4 एलिमेंट्स. यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से काम करना है, ठीक है ना, कि फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में काम करना है. और मैंने D5 इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन से D में 5 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं. सो यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो स्कैंडियम में जो लास्ट में आपका आएगा, यू विल राइट कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1, टाइटेनियम में बेटा आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम आर्गन 4s2 3d3, और यहाँ पे बेटा एक्सेप्शनल आर्गन 4s2 3d5. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद देखिए, सो यहाँ पर ये 3d5 आ चुका है, बट उससे भी बेसिक जो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज में आपको इसको अप्लाई करना है, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकल वैल्यूज मिलती हैं वो यहीं पर मिलेंगे. अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के भी हम फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो थी हमारी, दैट इज फॉर्मूला याद कीजिए, दैट इज YZNM. फॉर्मूले से इजी लर्न हो जाता है. टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम एंड मॉलिब्डेनम. सो इन 4 एलिमेंट्स में जब स्टडी करेंगे तो अगेन हमें कौन सा अप्लाई करना है? न्यूक्लियर चार्ज. सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 39, 40, 41 और 42. सिमिलरली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट होगी. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज LHTW. So lanthanum, hafnium, tantalum and tungsten. Now in the fourth transition series, AC, actinium, RF, rutherfordium, then after rutherfordium, dubnium, DB and SG, seaborgium. So जब आप इन 4 एलिमेंट्स
ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज में डील करोगे, ठीक है। सो जब लेफ्ट से राइट, बी क्लियर, बहुत ध्यान से स्टडी करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सब में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और सब में जो आपकी शेल है वो भी सेम रहेगी। देखिए यहाँ पे भी 4 मेन शेल्स, 4 मेन शेल्स, 4, 5। सिमिलरली जो आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें सभी एलिमेंट में 5 मेन शेल्स होंगी, इसमें नेक्स्ट में 6 मेन शेल्स और लास्ट में 7 मेन शेल्स, यहाँ पे 4 मेन शेल्स। तो जब आप अपना स्टडी करोगे, नॉर्मली हमें ट्रांजिशन सीरीज में स्टडी करना है, तो फर्स्ट 4 एलिमेंट में लेफ्ट से राइट आपको न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करना है। सो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड रेडियाई डिक्रीजेस। सो ये मैं ऑर्डर आपका स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, जस्ट सी इट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। बहुत इजी तरीके से समझाया है मैंने आपको, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे अप्लाई किया हमने। अब न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्लियर हुआ, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में अप्लाई करना है। लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, और रेडियाई आपका डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेगा, द नेक्स्ट फैक्टर वी विल स्टडी इज शील्डिंग इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम स्टडी करते हैं। अब बात आती है शील्डिंग इफेक्ट की बेटा। तो शील्डिंग इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, और ये एप्लीकेबल कहां पर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि D1 से D5 और फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, देखिए फर्स्ट 4 एलिमेंट आपको कंसीडर करने हैं, चाहे उनमें D1 से D4 हो या उनमें D1 से D5 हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि D5 आपको मिलेगा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के केस में, अदरवाइज हमारा D4 है। अब शील्डिंग इफेक्ट हम कब ऑपरेट करेंगे, विद यू कैन से फिफ्थ एलिमेंट से हम शील्डिंग इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, और वहां से बी क्लियर, बहुत ध्यान रखना है आपको कि D5 से लेकर D7 तक आपको शील्डिंग इफेक्ट को ऑपरेट कराना है। जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, D5, D6, D7, यहां पर D5 लिखा है मैंने, बट फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, क्लियर, इस चीज को कंफ्यूज मत करना कि सर यहां भी D5 और यहां पर भी D5 है। यहां अगर फर्स्ट 4 एलिमेंट में D5 आ गया तो न्यूक्लियर चार्ज ही कंसिडरेशन में जाएगा, और यहां पर फिफ्थ एलिमेंट जो है उसमें होता ही D5 है, तो वहां से आप क्या कंसीडर करोगे, शील्डिंग इफेक्ट। अब होता क्या, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये मैं शेल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हम नॉर्मली स्कैंडियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्योंकि हम डी ब्लॉक में डील कर रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखिए स्कैंडियम में बेटा 4 मेन शेल्स हैं, बट आप जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, आप डाल रहे हो पेन अल्टीमेट शेल में। पेन अल्टीमेट शेल होती है सेकेंड लास्ट शेल। जब आप अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन, बी क्लियर, पेनल्टीमेट शेल या सेकेंड लास्ट शेल में डालोगे तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। सो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारी 4 शेल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये बेटा मैं फोर्थ को ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए 4 शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, 4s2, और उसके बाद मैंने, अगर मैं इसको मान के चलूं 3d, सो 3d में आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डाला है, जस्ट वे दिस वन। सो अब न्यूक्लियस तो बेटा सभी को अट्रैक्ट करेगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इनको भी अट्रैक्ट करेगा, ये चीज़ आपको पता है। थोड़ा इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज द वे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टडी करना है, जस्ट सी आउट केयरफुली। अब अगर आप आगे की तरफ जाते हो, अगर आपने अगली कॉन्फ़िगरेशन देखी है, स्कैंडियम के बाद अगर मैं टाइटेनियम करता हूँ तो 4s2 3d2, वेनेडियम करता हूँ बेटा तो 4s2 3d3, क्रोमियम में यू हैव सीन 4s1 3d5। सो जो आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो इनर शेल या पेनल्टीमेट शेल में डाल रहे हो। सो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन 3d में डालोगे, 3d में डाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और डाला, एक इलेक्ट्रॉन और, जैसे जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, मीन्स यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन द
पेन अल्टीमेट शेल। जैसे जैसे आप अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे, सो ये जो अंदर वाली शेल है आपकी इनर शेल, सेकेंड लास्ट शेल, दिस शेल नाउ इट विल एक्ट एज अ शील्ड। किसके बीच में शील्ड की तरह काम करेगी? आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इस तरह से। क्लियर? अब ये शील्ड बन गई आपकी, ठीक है, कंप्लीट। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो डिक्रीज होगा, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, अब ये देखिए बेटा, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, ये आपकी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से शील्ड क्रिएट हो रही है, और ये शील्ड प्रॉपरली काम करेगी D5 ऑनवर्ड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? D5 से D7 तक काम करेगी। सो जब ये शील्ड आपकी बन चुकी है, अब क्या होगा, आपके न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में ये शील्ड आ गई। सो व्हाट हैपन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होगी तो बेटा सिंपल सा लॉजिक क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। सो रेपेल करने से क्या होगा, दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो जस्ट सी डायग्रामेटिकली बताता हूं, रेपेल करने पर ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे रेपेल होगा तो ये यहां पहुंचेगा दिस वे। क्लियर? सो अब इस इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन थी और ये इसकी नई पोजीशन है। अब अगर मैं ये पोजीशन मान के चलूं तो ये मेरा रेडियस था, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या था, दिस इज द रेडियस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पोजीशन। बट अब रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया है, सो ये हमारा दिस इज आर न्यू रेडियाई, इसमें इतना रेडियस हमारा इंक्रीज हो गया, दिस इज इंक्रीज इन रेडियाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग अफेक्ट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप इनर शेल में डालोगे 3D, ठीक है, वो एक प्रॉपर शील्ड प्रोवाइड करेगी न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। जब ये शील्ड अच्छी तरह तैयार होगी, इट विल वर्क, ठीक है, D5 ऑनवर्ड्स वर्क करेगी, तो न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो आपस में रेपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रेपेल करके यहां पहुंचा, जब ये यहां गया तो इतना आपका एटम का रेडियस इंक्रीज हुआ। सो दिस इज सेड टू बी द शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? एंड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट बी रिमेंबर द रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, अब चलिए इसका रीजन भी लिख देते हैं सो दैट आपको क्लियर हो। सी केयरफुली, when electrons are added to inner shells, they act as shield between nucleus and outer electrons। वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड की तरह काम करेंगे, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन अंडरगोस रिपल्शंस एंड द शेल एक्सपेंड्स। शेल आपकी एक्सपेंड करेगी, इतना एक्सपेंड करी बेटा आपका शेल। ये जो मैंने इंक्रीज इन रेडियाई लिखा है, दिस इज यू कैन से द शेल एक्सपेंड्स। Clear to all of you? And hence the radii increases. So अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप D1 से D5 या फर्स्ट 4 एलिमेंट में काम करोगे ट्रांजिशन सीरीज में, तो फैक्टर लगाना है न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद फैक्टर लगाना है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो जाएगा, नो, इसके बाद भी न्यूक्लियर चार्ज करेगा, बट टेक्निकली न्यूक्लियर चार्ज अपना रिजल्ट कहाँ दे पाएगा, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में। फिर शील्डिंग इफेक्ट अपना रिजल्ट कहाँ दे पाएगा, D5 से D7। Now listen students, third factor, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। इससे आपका रेडियस इंक्रीज होगा और ये फैक्टर ऑपरेट होगा D8 से D10 तक। अब इसका मीनिंग क्या है ये देखिए, आप बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे D1 से स्टार्ट करते हैं, देन D2, then D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10। चलिए लेट अस ड्रॉ दिस फर्स्ट।
चलिए नाउ दिस इज D1, D2 में बेटा 1 2, D3 1 2 3, D4 1 2 3 4, D5 1 2 3 4 and 5. After that D6 1 2 3 4 5 and 6, D7 1 2 3 4 5 6 7, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is D10. देखिए यहाँ पर बेटा एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, D1 में, D2 में, D3 में, सिंगल ऑर्बिटल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अप टू D5. सो D5 तक वी आर हैविंग नो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. रीज़न आप कह सकते हो क्योंकि बेटा एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और रिपल्शन के लिए कम से कम आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. जब D6 में आओगे सो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रेपेल करेंगे, D7 में 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रेपेल करेंगे, D8 में 3 में, D9 में 1 2 3 4 और D10 में सभी ऑर्बिटल्स में रिपल्शंस होंगे. तो जो आपके मैक्सिमम रिपल्शंस हैं वो D10 में. D10 हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. क्लियर. और मिनिमम आपको D6 में मिलेगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. अब ये जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है ये प्रैक्टिकली जो है कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता. मीन्स D6 में भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, D7 में भी नहीं करेगा इम्पैक्ट ड्यू टू यू कैन से लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. सो ये जो फैक्टर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये ऑपरेट करेगा D8, D9 और D10. यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है दे आर यू कैन से मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. खुद भी देख लीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रेपेल कर रहे हैं, यहाँ पर यू कैन से 8 इलेक्ट्रॉन रेपेल कर रहे हैं और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रेपेल करेंगे आपको अच्छी तरह से पता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस अकर देन शेल एक्सपेंड्स एंड द रेडियाई इंक्रीजेस. सो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है. D8, D9 और D10. जो D6 और D7 है वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शंस नहीं है, सो वहाँ पर ये फैक्टर आपका लीडिंग फैक्टर कंसिडर नहीं होगा. सो 3 फैक्टर आपने अभी तक करे कि हमें अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर है आपको. जब भी आप कंपेयर करोगे सबसे पहले तो मेन शेल है, आपने मेन शेल के अकॉर्डिंग आंसर देना. अगर मेन शेल आपकी इक्वल आ गई तो पहले आपको ये देखेगा कि ये फैक्टर आपने अप्लाई कैसे करने हैं. अब एक फैक्टर और आता है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं इसके साथ ही करूँगा, दैट इज़ आई विल डिस्कस विद द मेन शेल्स. और यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ये बेटा फैक्टर को नहीं कह सकते बट सिंपल आप इसको एज अ एक्सेप्शन लेके चल सकते हो. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है अब ये भी समझिए. चलिए एग्जांपल से समझाते हैं. वैसे क्लियर कर दूं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. शील्डिंग इफेक्ट था वो डायरेक्टली था, ये आपका इनवर्सली है. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है ये देखिए, 1 2 3 4, ये हमने 4 शेल्स ली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. ये आउटर शेल में मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन या 2 लेके चलते हैं, डजन मेक एनी. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है. और ये आपकी इनर शेल्स, इनमें आपने इलेक्ट्रॉन डालें 2, देन सेकंड में 8, अब थर्ड में भी आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कीजिए जैसे. अब जब आप इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ये आपने इलेक्ट्रॉन किस में डाले, इनर शेल. फोर्थ हो गई आपकी आउटर शेल. इट इज सिंपली अ डायग्रामेटिक डेमोस्ट्रेशन. तो थर्ड क्या हो गई आपकी इनर शेल, ठीक है, सभी को इनर शेल्स. तो जैसे जैसे आप इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे वो जो इनर शेल है इट विल एक्ट एज अ शील्ड. ये बेटा शील्ड की तरह काम करती है और उसकी वजह से क्या होगा, आपके न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा. ये होता है कि अगर ये शील्ड प्रॉपर है और वी कैन से नॉर्मल शील्डिंग इफेक्ट है. बट अगर आप डील कर रहे हो 4F और 5F में, बी क्लियर,
तो ये जो शील्ड होगी ये इम्प्रॉपर शील्ड, दीवार अच्छी नहीं है, ठीक है। अब ये शील्ड क्या होगी, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर शील्ड होने की वजह से क्या है, इसका एग्जिस्टेंस हो या ना हो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए अगर ये दीवार प्रॉपर थी तो इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स कम हो गई थी, बट अब ये दीवार प्रॉपर नहीं है तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। दिस वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो शेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ अब देखिए आप, इम्प्रॉपर शील्ड होगी किसमें, 4f और 5f में। इसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ड्यू टू इम्प्रॉपर शेप्स। अगर आपको पता है दीवार एक प्रॉपर शेप में है तो ही वो एक प्रॉपर शील्ड की तरह काम करती है। अगर दीवार को आप टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे या उसकी शेप ठीक नहीं होगी तो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाएगी। और 4f और 5f में इम्प्रॉपर शील्डिंग 5f की ज़्यादा है, 5f हैज़ मोर इम्प्रॉपर शील्डिंग देन 4f। तो मेन चीज़ पे आइए, अगर आपकी जो वॉल है वो इम्प्रॉपर शील्ड कर रही है, कौन करती है, 4f और 5f, तो क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ड्यू टू विच शेल एक्सपेंड्स, शेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रेडियाई डिक्रीजेस। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है ये फैक्टर अप्लाई कहाँ करना है, जहाँ पर 4f और 5f होंगे। बी क्लियर। और 4f मैं क्लियर कर दूं, लेंथेनाइट्स लिख देते हैं हम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस कहाँ करेंगे, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में, ठीक है। तो एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या है, पहले मेन शेल्स, ठीक है। और अगर आपका मेन शेल के साथ 4f या लेंथेनाइट्स में आ गया तो वहाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट को कंसिडरेशन देनी है। फिर मेन शेल के बाद आप न्यूक्लियर चार्ज D1 से D5 में, D5 से D7 में शील्डिंग इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा, और फिर D8 से D10 में इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। अभी इन सभी फैक्टर को हमें कॉमनली अप्लाई करना है डी ब्लॉक पे। सो ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ अब ये जितना मैंने अब तक आपको कराया था ये बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, ठीक है, जो आपको बेस क्लियर करेगा कि हमें डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करना है तो हमारा क्या बेस होना चाहिए। बट एज फार एज CBSE लेवल इज कंसर्न, यहाँ तक आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इम्प्रॉपर, बिकॉज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द क्लास 11। बट अगर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते सो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफ़ी दिक्कत करता है। सो देखिए अब रेडियाई इन ट्रांजिशन मेटल्स, बिल्कुल सिंपल है। हम इसको दो तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे ट्रांजिशन सीरीज में, मींस लेफ्ट टू राइट। फिर हम इसको स्टडी करेंगे ग्रुप्स में। 2 टाइप्स के हमें इसको स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए पहले एलिमेंट्स को नोट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड दिस इज जिंक। थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं, आई थिंक यहाँ हमने ज़्यादा स्पेस छोड़ दी। सी आउट, थोड़ा क्लोज लिखते हैं इनको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसके बाद फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक, यू रिमेंबर, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा क्या हमने किया था। सेकंड सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या फॉर्मूला था हमारा, YZNM, YZNM TRRPAC। पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर एलिमेंट्स। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हमारा जो फॉर्मूला था, थोड़ा रिवाइव भी हो जाएगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हमारा फॉर्मूला था सिंपली LHTW रोइपा, ROIPAH। और फोर्थ और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज का बेटा जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज सिंपल ARDS BHMDRC। चलिए नाउ सी द एलिमेंट्स। टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम,
molybdenum, technetium, RuRH, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. ठीक है. Now the next, La, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, palladium के नीचे platinum, Au gold, Hg mercury. बिल्कुल सिंपल मेथड है बेटा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, अदरवाइज न्यूमेरिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप इजीली नहीं कर पाओगे. नाउ दिस इज एक्टिनियम, Rf रदरफोर्डियम, Db डबनियम, Sg सीबॉर्जियम, Bh बोरियम, H से यू विल गेट हेस्नियम Hs, Mt मेटनीरियम, then D से will get डमस्टीडियम Ds, Rg रोएंटिजीनियम और Cn कॉपरनीशियम. सो अब ये मैंने एलिमेंट नोट किए. ठीक है. अब हम स्टडी करते हैं कि लेफ्ट से राइट क्या होगा वेरिएशन. तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजेस यहां से यहां तक. बी क्लियर. व्हाट विल आई राइट? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. चले कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम फर्स्ट ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशंस की हेल्प लेंगे. सो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर आपको पता ही है फर्स्ट में 21, 22, 23. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? आई विल राइट आर्गन 4s2 3d1, देन आर्गन 4s2 3d2, argon 4s2 3d3 and chromium is argon 4s1 3d5. अब देखिए यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सभी में 4 मेन शेल्स आएंगी. मैं क्लियर कर दूं कि जब आप लेफ्ट से राइट स्टडी करते हो तो आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहता है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सभी एलिमेंट्स में वी आर हैविंग 4 मेन शेल्स. देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में बेटा 5 मेन शेल्स. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 6 मेन शेल्स और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में वी आर हैविंग 7 मेन शेल्स. तो जब हम लेफ्ट राइट स्टडी करेंगे तो मेन शेल वाला फैक्टर हमारा खत्म होता है. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आप फर्स्ट 4 एलिमेंट में काम करोगे, फर्स्ट 4 एलिमेंट में आपका न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट करेगा. और मैंने कहा था D1, D2, D3 और D4 या D5 तक. ठीक है. So atomic radii decreases due to increase in nuclear charge. ये अपने माइंड में रखना है, बिल्कुल क्लियर कट है. अगर मैं कहूँ टेरियम और जिरकोनियम में किसका रेडियस ज़्यादा है? टेरियम हैज़ मोर रेडियाई देन जिरकोनियम. ठीक है. लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 5s2 4d1. दिस इज क्रिप्टन 5s2 4d2. सो D1 D2 ऑटोमेटिकली जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम. बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है. सो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ तक. अब आफ्टर दैट दिस पार्ट फ्रॉम मैग्नीज, टेक्नीटियम, रीनियम या बोरियम से लेकर निकल तक, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या डमस्टीडियम, यहाँ पर जो आपका रेडियस है वो कांस्टेंट है, नियर अबाउट कांस्टेंट. दिस वे. अब आप सब कहोगे सर ये भी छोड़ दिया. बेटा क्रोमियम के बाद ये भी इसी का पार्ट आएगा, यहां से कर लीजिए. क्रोमियम, मोलिब्डेनम ऑनवर्ड्स, टंगस्टन ऑनवर्ड्स, सी बोर्जियम ऑनवर्ड्स. तो पहले 4 एलिमेंट्स में डिक्रीज है, उसके बाद आपका जो रेडियस है इसको यहां तक हम कर लेंगे, यहां से फिर निकल तक आपका जो रेडियस है वो क्या है? द रेडियाई इज कांस्टेंट. अब कांस्टेंट का लॉजिक देखिए क्या है. कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर होगा. बाकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा यहाँ से रब करते हैं सो दैट वी विल हैव सम स्पेस. इनका काम हो गया हमारा. चलिए क्रोमियम तक हमारा वर्कआउट हो चुका है. Mn में देखते हैं. तो Mn में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आर्गन 4s2 3d5, देन इन आयरन आर्गन
4s2 3d6 एंड सेम एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द ट्रांजिशन सीरीज, ये ध्यान रखिएगा सभी की सेम एक्सप्लेनेशन है। कोबाल्ट AR 4s2 3d7 एंड निकल AR 4s2 3d8। अब देखिए इसमें क्या है, यहां से यहां तक रेडियाई कांस्टेंट है, उसका पहला रीजन बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फिर से देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से आपका जो रेडियाई है वो डिक्रीज होना चाहिए। बट यहां पर सेकंड फैक्टर मैंने कहा था D5 D6 D7 D8, इनमें आपका शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, रेडियाई जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अब देखिए दोनों फैक्टर वर्कआउट कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी और शील्डिंग इफेक्ट, और एक फैक्टर तो रेडियस को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर जो आपका रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट। और इस पार्ट को हम बोलते हैं मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। दिस पार्ट इज सेड टू बी द मिडल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, और इस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। सो मिडल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में आपका रेडियाई कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट या उसमें बहुत कम डिक्रीज है। रीजन आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट। नाउ अब इन द लास्ट आइए, लास्ट में निकल से कॉपर जिंक, पैलेडियम सिल्वर कैडमियम, प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, डमेस्टीडियम रोइंटिजिनियम कॉपर नीशियम, दिस इज सेड टू बी द एंड ऑफ transition series. So in the end of the transition series, what happens, the radii increases। अब इसका रीजन देखिए, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैंने कहा था D8 ऑनवर्ड्स, D8 की अगर बात की जाए, निकल में D8 हमने लिखा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कॉपर में आर्गन 4s1 3d10, और बेटा जिंक में क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d10। सो बेटा जैसे D8 D10 D10, यहां पर आपको बताया था मैंने, वी आर हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगे तो व्हाट हैपन, शेल एक्सपेंड होगी एंड द रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। सो अब आपका जो रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन सीरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका स्कैंडियम से क्रोमियम, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। फिर क्रोमियम से आप निकल जाओगे तो कांस्टेंट है ड्यू टू 2 फैक्टर जो बिल्कुल अपोजिट काम करें, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट में निकल से जिंक आपका इंक्रीज है क्योंकि वहां पर आपके फील्ड ऑर्बिटल बढ़ जाएंगे D8 D10 D10, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होंगे, शेल एक्सपेंड होगी और रेडियाई आपका इंक्रीज करेगा। सो ये हमारा पहला एक्सप्लेनेशन हुआ जो हमने करा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज। इसमें जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की है वही सेकंड और वही थर्ड, ठीक है ना, क्लियर ना, वही फोर्थ की भी। नाउ अब सेकंड हमको कैसे स्टडी करना है, इसको रब करते हैं। अब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे कि यहां पर ग्रुप में कैसे आपका रेडियस अफेक्टेड होता है। सो जस्ट सी आउट, इसको रब करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट विल रब आउट जो हमारे किसी काम का नहीं है, जस्ट सी आउट। सो सेकंड इज रेडियाई इन ट्रांजिशन मेटल्स in groups। in groups, अब देखिए बेटा, ये आपका थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th एंड 12th। तो किसी भी ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं, चलिए यहीं से स्टडी करते हैं, जस्ट सी आउट। अगर आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सो इट विल बी आर्गन 4s2 3d1, टेरियम की बेटा क्रिप्टन 5s2 4d1, देन लैंथेनम इज जिनॉन 6s2 5d1, और एक्टिनियम बेटा रेडॉन 7s2 6d1। अब एक चीज देखिए, जब आप ग्रुप में नीचे आओगे, डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपन्स, बिल्कुल ध्यान से देखना है। स्कैंडियम में 4 मेन शेल्स हैं,
हम एक ही से एक्सप्लेन करेंगे इस ग्रुप से, ठीक है। टेरियम में यू आर हैविंग 5 मेन शेल्स, लैंथेनम में 6 मेन शेल्स और एक्टिनियम में 7 मेन शेल्स। सो पहली चीज़ अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपकी डिस्कस होगी। सो फ्रॉम व्हाट विल आई राइट, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स मेन शेल्स इंक्रीजेस, देयरफॉर रेडियाई इंक्रीजेस। तो रेडियस आपका इंक्रीज होना चाहिए, मींस स्कैंडियम से ज़्यादा रेडियस। अब यहाँ पर इसको करते हैं कैसे अरेंज करें, हम कॉन्फ़िगरेशन हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, अब समझ में आ चुका है। स्कैंडियम से ज़्यादा रेडियस टेरियम, फिर लैंथेनम, और इसी को अगर कंटिन्यू करें तो आगे ये होना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन भी आएगी, तो अभी इसी में एक्सेप्शन को इंक्लूड करना है। बट अगर पहले हम अपने प्रेस्क्रिप्शन को लेकर चलें तो हमारा ग्रुप में मेन शेल इंक्रीज हुई, ड्यू टू विच रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, और ये सभी में एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल टू 4th, 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन। बट अब एक चीज़, बट द रेडियाई ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज नियरली सेम एज दैट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मीनिंग क्या है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो रेडियस है वो नियर अबाउट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब इसको भी देखिए, टाइटेनियम से ज़्यादा जिरकोनियम, जिरकोनियम और हैफनियम का नियरली सेम, देन अगेन इंक्रीज, दिस इज आई वांट टू से। देन वेनेडियम से ज़्यादा नियोबियम, देन नियोबियम एंड टेंटेलियम नियर अबाउट सेम, फिर यहाँ पर इंक्रीज। सो यहाँ पर जो आपकी ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट से सेकेंड में इंक्रीज होगा, सेकेंड और थर्ड में रेडियस नियर अबाउट कांस्टेंट है, थर्ड से फोर्थ फिर इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेन शेल्स, एक्सेप्ट दैट द रेडियाई ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज इक्वल टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसका रीजन देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में रेडियस सेम क्यों है। क्लियर। अब बाकी एक्सप्लेनेशन हम यहां से हटाते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। Just we have to explain कि why the radii of second and third transition series is same. So इसका बेटा एक रीज़न देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम सो ऑन चलेगी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब आप आओगे तो लैंथेनम के बाद, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद 58 से लेकर 71, 14 एलिमेंट्स, दीज आर सेट टू बी लैंथेनाइट्स। हम इनको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट्स, ठीक है। इनमें जो फीलिंग होगी वो 4f की फीलिंग होगी। क्लियर। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेटा 4f1 से 4f14 में जाएगा। क्लियर। सो इसमें क्या होता है, जब आप 58 से 71 जाओगे एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लैंथेनाइट्स, देयर रेडियाई डिक्रीजेस ग्रेजुअली। इनका जो रेडियस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, एकदम डिक्रीज नहीं होगा। टर्म्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर टर्म इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो इस चीज को देखिए, जब आप ग्रुप में नीचे आते हो तो व्हाट हैपन, मेन शेल इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच रेडियस हमारा इंक्रीज होना चाहिए। बट लैंथेनम के बाद जो हम स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आता है दैट इज एटॉमिक नंबर 72, हैफनियम, देन आफ्टर दैट हैफनियम वी विल गेट टेंटेलम। सो यहाँ पर अब जब आप नीचे जा रहे हो ग्रुप में तो मेन शेल बढ़ने की वजह से रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। बट इस गैप के अंदर बी क्लियर, लैंथेनम और हैफनियम के बीच में जो गैप है वहाँ पर क्या है आपका, यू आर हैविंग द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पर जितना रेडियस बढ़ा था यहाँ पर उतना ही रेडियस कम हो गया ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपकी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज है वो नियर अबाउट क्या है, सेम है। क्लियर। सो वन रीजन एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का रेडियस सेम किस वजह से है, क्योंकि यहां पर हम 57 एटॉमिक नंबर के बाद लैंथेनाइट्स जो है 14 एलिमेंट्स हैं
वहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको भी रीजन करेंगे ये डिक्रीज क्यों करता है, जस्ट सी आउट। सो रेडिया ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसका कॉज क्या है, कॉज जस्ट सी आउट। बेटा जब आप 58 से 71 एटॉमिक नंबर पे जाओगे, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो 4f1 से 4f14 में, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, आपको पता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर व्हाट हैपन्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू विच रेडियाई डिक्रीज करेगा, बिल्कुल क्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ने से। सेकेंडली, अब आप इलेक्ट्रॉन 4f में डाल रहे हो, ठीक है ना, इनर, बल्कि इसको हम देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, आउटर शेल s है, ठीक है, d को हम क्या बोलते हैं, d इज सेल टू बी द पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि ये एक शेल अंदर होगी d से, अगर आप s को n मानोगे तो ये n-1, और उसके अंदर होता है f, तो इसको बोलेंगे n-2, एंटी पेनल्टीमेट शेल। सो यहाँ पर F ब्लॉक में जो शील्डिंग का काम है वो कौन कर रहा है, F, और कौन सा F, 4f। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि 4f, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कि जो 4f है इट कॉजेज इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। आप 4f में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, 4f क्या कर रहा है, इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट कर रहा है, ड्यू टू विच रेडियाई इंक्रीज स्लोली, बहुत स्लो इंक्रीज होगा। देखो अब सिंपल सा है, अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर है तो आपका रेडियस एकदम से इंक्रीज करता है, बट शील्डिंग इफेक्ट इम्प्रॉपर है तो रेडियस जो है वो उतना इंक्रीज नहीं करता, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा देखिए मैं समझाता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज ने रेडियस को इतना डिक्रीज किया, और अगर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर होता तो ये बिल्कुल बराबर जाना था, न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट। बट अब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ने रेडियस को डिक्रीज किया, और इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से, इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ISC, इतना एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हुआ। सो नेट डिक्रीज तो आपका इतना आया, दिस इज द नेट डिक्रीज। बट अब ये जो डिक्रीज है ये पूरा डिक्रीज नहीं है, खाली न्यूक्लियर चार्ज होता तो रेडियस इतना डिक्रीज करना चाहिए था, अब ये इतना ही डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर हमने लिखा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियाई, और इसका रीजन है ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ 4f, और वो इम्प्रॉपर शील्डिंग क्यों करता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर शेप। सो वैसे जब हम लेंथेनाइड्स करेंगे F ब्लॉक, ये वहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल है, बट अभी क्योंकि एटॉमिक रेडियस में इतना आपको समझाना जरूरी था कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का रेडियस सेम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ 4f। बस इतना याद कीजिए। एज फार एज दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट। चलिए नाउ, सो ये बेटा हमने क्या किया, दैट इज दिस वी हैव स्टडीड, यू कैन से द एटॉमिक रेडियाई, और हमने इसको जो स्टडी किया इन द ट्रांजिशन सीरीज भी स्टडी करा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर हमने इसको अकॉर्डिंग टू ग्रुप भी स्टडी किया। अब हम आते हैं आज के सेकंड पार्ट पे, दैट इज आयोनिक रेडियाई। द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, आयोनिक रेडियाई। नाउ आयोनिक रेडियाई, अब एक चीज बड़ा ध्यान देना है आपको, एज द नेम इंडिकेट्स, बिल्कुल नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज द रेडियस ऑफ द आयन, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और इसको हम स्टडी करेंगे 3 पार्ट्स में, इट इज स्टडीड इन द 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। बट इससे पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, दिस इज द S ब्लॉक, दिस इज द D ब्लॉक, और बेटा ये आपका P ब्लॉक। सो लेफ्ट से राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, जो आपका रेडियाई है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जो D ब्लॉक का रेडियस है, वेरी इंपॉर्टेंट, द रेडियाई ऑफ D ब्लॉक इज बिटवीन S एंड P ब्लॉक।
सिमिलरली जो आयोनिक रेडियाई होगा ऑफ डी ब्लॉक इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। रीजन, क्योंकि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। सो फर्स्ट आई विल राइट हेयर, एटॉमिक का भी आ जाएगा बेटा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। अब इसका रीजन आपको शायद मैं बता दूं, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है ना, उसकी वजह से रेडियस डिक्रीज करता है। तो जब आप एस से डी में जाओगे, सो व्हाट हैपन, जो डी का रेडियस है इट इज वेरी क्लियर लेस देन एस, बट इट इज डी से पी में जाओगे तो सेम ऑर्डर है, बट अगर डी से कंपेयर करोगे, सॉरी डी से पी में जाओगे सेम ऑर्डर है, और पी से कंपेयर करोगे तो इसका जो रेडियस है इट इज मोर देन पी ब्लॉक, याद रखना है, ठीक है ना, लेस देन एस ब्लॉक, मोर देन पी ब्लॉक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रीजन सेम इन एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज इन आयनिक रेडियाई, और रीजन आपको अब अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज एक्सप्लेन करना है। सो ये तो जनरल बात हुई। अब देखिए मेन चीज, फर्स्ट द रेडियाई, सॉरी सेकेंड, द रेडियाई डिक्रीजेस with increase in oxidation state, very important। अगर मैं एक्सप्लेन करूं, देखिए ये M पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव, या थोड़ा लेफ्ट में लिखते हैं बेटा, जस्ट सी आउट, M पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव। देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सो व्हाट हैपन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट द रेडियाई डिक्रीजेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसका रीज़न देखते हैं। वैसे भी मैं बता दूं कि आपने 11th में करा होगा, जैसे कैटायन का जो साइज़ है अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस डिक्रीज होता है। सो यहाँ पर अब रीज़न हमें स्टडी करना है, मैं पहले रीज़न बताऊँगा फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। द रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, हमारा एक फैक्टर है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZEFF मीन्स अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता क्या है पहले इसको समझिए। सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा, और ये मैंने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेकंड में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। जस्ट सी नाउ, न्यूक्लियस सभी को अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस की फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन पर इट इज सेड टू बी द न्यूक्लियर चार्ज, बट उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन पर देखें, दैट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरी सिंपल। अब ये निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू P अपॉन E, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। और सिंपल आपको पता है, अगर आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ेगा, शेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रेडियस डिक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज की तरह ही इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। बट अब ये अप्लाई कहाँ करना है? सबसे पहली चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन या 2 पॉजिटिव आयन ऑफ सेम मेटल को कंपेयर करोगे, तो हमें इस फैक्टर को ऑपरेट करना है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। चलिए नाउ जस्ट सी, टेक वन एग्जांपल फॉर दैट। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें फॉर दिस, रेडियस ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23। अब देखिए, अगर आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट करो, सो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो 23 प्रोटॉन्स, 2 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन 23 माइनस 2 21। सेम हेयर, Z इफेक्टिव प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन 20। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सिंपल सा लॉजिक है कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? वेनेडियम 3 पॉजिटिव का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो रेडियस क्या हो गया? कम। या वेनेडियम 2 पॉजिटिव का रेडियस ज़्यादा है ड्यू टू लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर, सॉरी देखिए फिर से एक बार देखते हैं, ड्यू टू, चलिए लिख ही लेते हैं, लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इट विल हैव द मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल ध्यान रखना है आपको, जब आप एक ही एलिमेंट में डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में काम करोगे, ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, V2 पॉजिटिव से V3 पॉजिटिव, आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और रेडियस आपका डिक्रीज होगा। तो इसका रीजन भी मैंने बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ एक होगी हमारी। ठीक है, इसमें जितने भी एग्जांपल आएंगे मैंने सबको M से इंडिकेट किया है। M का मतलब सेम एलिमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब थर्ड केस जो है वेरी क्लियर, द आयनिक रेडियाई डिक्रीज with increase in oxidation, या with proper लिखे with increase in nuclear charge for same oxidation state। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट सी आउट। हम एग्जांपल लेते हैं, रेडियाई ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन रेडियाई ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव। सबसे पहले देखो बेटा, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स, ये टाइटेनियम ये वेनेडियम, सो ये वाला तो खत्म ही हो गया लॉजिक। दूसरा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम टाइटेनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है 22 और इसका एटॉमिक नंबर है 23, मीन्स जो वेनेडियम है इट हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज वेयर एज टाइटेनियम हैज लेस न्यूक्लियर चार्ज। सो ये फैक्टर क्या कहता है कि अगर आप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको रेडियाई को कंपेयर करना है, ठीक है, सो द आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल न्यूक्लियर चार्ज देखिए, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आयनिक रेडियाई में दो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। अगर जो आप ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करते हो तो रेडियस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव सेम एलिमेंट में। यहाँ पर आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ इन दोनों पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल वेल क्लियर, आपको ध्यान रखना है। चलिए नाउ वी विल सी इन द लास्ट सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। Conceptuals based on atomic and ionic radii. चलिए now listen. First he says why the radii decreases from scandium to chromium. तो बेटा स्कैंडियम से क्रोमियम का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। सो वहां पर मैंने रीजन बताया था, द रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम निकल टू जिंक। निकल टू जिंक बेटा एंड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज है, वहां पर रेडियस इंक्रीज हुआ due to increase in the electron repulsions. Clear to all of you? Now third question, it says why the radii is constant in the middle of transition series. मिडल में कांस्टेंट क्यों है? देखिए, क्योंकि मिडल ऑफ सीरीज में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियाई डिक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, रेडियाई इंक्रीज होगा। सो व्हाट हैपन्स, एक फैक्टर तो रेडियस को डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर द रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है ना। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द साइज ऑफ जिरकोनियम इज सिमिलर टू हैफनियम। सो बेटा ये मैंने आपको बताया था, जो आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनका जो रेडियस है वो सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो ये वही एलिमेंट्स हैं आपके दैट यू हैव टू
remember. Okay. Number 5, which has more radii. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव. सो बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जस्ट सिंपल, with increase in oxidation state the radii decreases. The radius Cu positive is greater than Cu 2 positive. इसका रीज़न हम Z effective से निकालेंगे. एटॉमिक नंबर 29 है, तो Z effective 29 प्रोटॉन अपॉन 28 इलेक्ट्रॉन, हेयर 29 प्रोटॉन अपॉन 27 इलेक्ट्रॉन. सो सिंपल सा लॉजिक देखिए बेटा कि Cu2 पॉजिटिव का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस कम हो गया. ठीक है, इट हैज़ more effective nuclear charge while Cu positive has less effective nuclear charge. बगैर सॉल्व करे भी देख सकते हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट. नाउ सेकेंड, Cr3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव. अब ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कहा था जो रेडियाई है इट सिंपली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो दोनों के न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं. सो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 21, 22, 23, 24, 25. So chromium 24, manganese 25. So just see out. Manganese has more nuclear charge. Chromium has less nuclear charge. Automatically the radius of Cr plus 3 is more than Mn plus 3 due to less nuclear charge. So student, this we have completed the complete you can say atomic radii and ionic radii. These are the very two important properties. बट फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको डाउट है तो सिंपल एक लॉजिक है, मेरे 11th का वीडियो है जिसमें एटॉमिक रेडियाई को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो वहाँ से भी बेसिक उठा सकते हो. बट एज फार एज 12th इज कंसर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक करा दिया था. बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सी एटलीस्ट 2 times देन इट विल बी क्लियर कि हमें कहाँ पर तो न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करना है, कहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करना है, कहाँ पर इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करना है, एंड वेयर वी हैव टू अप्लाई द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. क्लियर. एस और पी ब्लॉक में रेडियस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट डी ब्लॉक में देयर आर इश्यूज क्योंकि 4 फैक्टर को ऑपरेट करना है. तो लर्न क्या करोगे, वेयर यू हैव टू अप्लाई द न्यूक्लियर चार्ज, वेयर यू हैव टू अप्लाई शील्डिंग इफेक्ट, वेयर यू अप्लाई इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, एंड वेयर यू अप्लाई दैट व्हाट विल आई से electron repulsion. So student, this is all about the topic that is atomic and ionic radii of d block elements. That's all for the topic.